Hi, welcome back to Teaching Learning with Shweta. We are studying about the Freud's psychoanalytic theory of personality. In the previous video, I discussed about id, ego, superego, conscious, unconscious, subconscious behavior, and I also discussed about the instincts. Today, I'm going to talk about, or in this video, I'm going to talk about defense mechanisms. तो डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ने के पहले मैं ये क्लियर करूँ कि आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्लेसमेंट और सब्लिमेशन generally people confuse them with defense mechanisms. They are not defense mechanisms. They are different from defense mechanisms. Defense mechanisms I have written on the left hand side. So let's first understand what these three things are. हमें ये पता है कि साइकिक एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो टेंशन होता है और उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम बिहेव करते हैं इन अ सर्टन वे एंड दैट इज़ व्हाट forms the crux of this or the underlying principle of this theory of psychoanalytics. तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब किसी को किसी चीज़ की वजह से टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो उस या फिर किसी नीड को पूरी करने के लिए उसको साइकिक एनर्जी उसकी हाई हो रही है और वो ये देखता है कि कोई और इंडिविजुअल है वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है और उस वजह से उसको उसकी वो नीड पूरी हो रही है तो वो उसकी नकल करने लगता है या उससे आइडेंटिफाई करने लगता है. इमिटेशन वर्ड से फ्रॉइड को प्रॉब्लम थी, सो ही यूज्ड द वर्ड आइडेंटिफिकेशन बिकॉज इट वाज नॉट सिंपली कॉपीइंग बिहेवियर. दैट्स व्हाई ही डिड नॉट यूज द वर्ड इमिटेशन, ही यूज्ड द वर्ड आइडेंटिफिकेशन. दैट इज द पर्सन स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग विद द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ समवन एल्स because he or she notices that through those personality traits his or her own needs can be fulfilled and tension can be eliminated. So that person starts acquiring the traits, the personality traits of that person. So that is called identification. Generally बच्चों का identification, छोटे बच्चों का उनके पेरेंट्स का होता है, वो पेरेंट्स की ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कॉपी या एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. बट एज दे ग्रो अप दे मे ऑल्सो फाइंड सम अदर पर्सन टू रिलेट टू एंड आइडेंटिफाई विद. तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया. इट इज़ नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस. द सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट. जब हमें कोई चीज़ चाहिए अपनी नीड फुलफिल करने के लिए जिसकी वजह से साइकिक एनर्जी बढ़ रही है, इड बार बार कह रहा है उसको पूरा करो, उसको पूरा करो, और वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ को हम एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. सो व्हेन इड इज़ actually under a lot of pressure to gratify a need and that object that is actually required to gratify that need is not available, then a replacement is sought by us to fulfill that need. The more similar is the object, more effective is this tension reducing process. So that's process of finding a substitute for that original object that gratifies the need. तो जिस object से need fulfill हो रही है उसका जब हम substitute ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो original चीज़ नहीं है, that is displacement. अगर कोई IIT में नहीं आ पाया तो उसने कोई और एग्ज़ाम दिया ताकि वो उसी टाइप की नौकरी कर पाए, that is a kind of displacement. Now it is also not a defense mechanism, it's also a normal thing. Sublimation. अब displacement मॉरल इमोरल दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट मॉरलिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए होता है कि मेरी कोई ऐसी विश है जिसको पूरा करने में कुछ गलत चीज़ हो रही है जो सोसाइटी को पसंद नहीं है, तो मैंने उसको इस तरह से किया, उसका सब्सटीट्यूट इस तरह से निकाला कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. This example that Freud gave was of Leonardo da Vinci, who had painted a picture of a woman, and it was said by Freud that he had feelings for his mother because he was separated from his mother at a very young age. He could not get the intimate closeness of his mother, which is why he painted such pictures, and that was a kind of displacement of his feelings in a positive manner. And when displacement is done in a socially acceptable way, जब हम, जैसे मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट जब हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है नीड फुलफिल करने के लिए, वो नहीं मिलता तो हम उसका सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं. वो सब्सटीट्यूट मॉरली रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन जब वो मॉरली करेक्ट होता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, तब उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इन लाइन्स विद सोसाइटल स्टैंडर्ड्स इज सब्लिमेशन. यहाँ पे सुपर ईगो का काम ज़्यादा है, यहाँ पे ईगो का काम ज़्यादा है.
तो ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर नॉट डिफेंस मैकेनिज्म्स. नाउ लेट अस कम टू डिफेंस मैकेनिज्म्स. डिफेंस मैकेनिज्म्स कब होते हैं? जब साइकिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, कोई नीड फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से टेंशन, एंग्जाइटी आती है. तो उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में आती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हम अनकॉन्शियसली भी करते हैं, कभी कभी सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली भी करते हैं, बट जनरली यहाँ पे अनकॉन्शियस बिहेवियर की ही बात हो रही है. सो ऑल दोज डिफेंस मैकेनिज्म्स आर बेसिकली मैकेनिज्म्स टू रिड्यूस द anxiety because of the increase in psychic energy or tension. So what are those defense mechanisms? The first is repression. So repression, I'll just give you an example that somebody is unable, somebody has strong feelings towards someone, and that person happens to be a relative or a motherly or a fatherly figure, and that is causing anxiety. So what that person will do, that person will suppress those feelings. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर ईगो उसको रिप्रेस करने के लिए वो चीज़ फोर्स कर रहा है. तो रिप्रेशन से क्या होता है, ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी कम होगी, बट इन रियलिटी रिप्रेशन डज नॉट रिड्यूस टेंशन. इट एक्चुअली कैन कॉज अ लॉट ऑफ mental disorders in the later lives. A lot of repression, a lot of super ego intervening and repressing the feelings is also not good. Another example I can give you, some किसी को किसी चीज़ से एंग्जाइटी होती है, किसी को देख के डर लगता है, तो वो क्या करेगा, उस जगह पर जाना ही अवॉइड करेगा. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिप्रेशन. तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेंशन. सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म इज डिनाइल. आप सिंपली उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको बुरा लगेगा. किसी की डेथ हुई है, सम पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, नहीं वो जिंदा है, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है. ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिनाइल. ये डिफेंस मैकेनिज्म है टू अवॉइड द फीलिंग ऑफ टेंशन, एंग्जाइटी और सैडनेस. थर्ड काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रोजेक्शन. जब हमें पता है कि अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो हमारा सुपर ईगो है उसकी वजह से जो हमें एंग्जाइटी होती है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी कंसाइंस से रिलेटेड है, उसकी जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जबकि कोई बाहर की एक्सटर्नल चीज़ की वजह से जो एंग्जाइटी होती है वो कम होती है. तो ह्यूमन बींग्स को जब सुपर ईगो परेशान करता है, गिल्ट देता है, तो वो क्या करते हैं, वो बहानेबाजी करते हैं. दे मेक एक्सक्यूजेज एंड ट्राई टू ट्रांसफर इट और एसोसिएट दैट गिल्ट विद समथिंग एक्सटर्नल. आई डिड नॉट आंसर बैक, ही इनिशिएटेड द आर्ग्यूमेंट, ऐसे हमने बोल दिया, जबकि हमें पता है कि गलती हमारी है. तो इस तरह की एंग्जाइटी जो सुपर ईगो से रिलेटेड होती है, मोरालिटी से रिलेटेड होती है, उसको दबाने की कोशिश में जब हम किसी और पे ब्लेम कर देते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन. कि हो सकता है हमें बुरा लग रहा हो कि हमने गलत काम किया, लेकिन हम बहाना दे दें कि शी वॉज द वन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, शी डजंट लाइक मी, दैट्स वाई आई डोंट गो देयर. But that's not the truth. So जब हम बहानेबाजी करते हैं, when we make excuses and put the blame on something else, which is actually in an attempt to reduce our tension that a superego is causing, or a morality check, a morality consciousness is causing, that kind of defense mechanism is projection. नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि हम ऑपोजिट बिहेव करते हैं. हमें किसी से जेलसी हो रही है और हमें पता है जेलसी अच्छी नहीं है, तो हम उसकी बहुत तारीफ़ करना शुरू कर देंगे. वाओ, वेरी नाइस, आई फेल्ट वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आए. जबकि अंदर से वो फीलिंग कुछ और है. किसी से नफरत है लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो. ऐसी चीज़ों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ रिएक्शन फॉर्मेशन? यूजुअली रिएक्शन फॉर्मेशंस आर ऑपोजिट as expected and are intense and are masked with a lot of show off. बहुत show off वाले जो reactions होते हैं वो usually reaction formation होते हैं. Natural, अगर आपको सच में genuinely किसी से खुशी हो रही है तो वो पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप fake कर रहे हो तो वो reaction formation है usually. The last and the most important reaction defense mechanism is regression or fixation. ये unconsciously भी होता है कई बार कि हमें कोई तकलीफ होती है लाइफ में तो हम अपना जो पुराना स्टेज है चाइल्डहुड का या एडोलसेंस का उसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं. ये हमें थोड़ा सा आराम देता है, जैसे कि मुंह में पेंसिल देना, मुंह में कोई भी चीज़ देना, ये छोटे बच्चों की आदत होती है क्योंकि उनका सेंटर ऑफ जो होता है अट्रैक्शन एंड वो होता है माउथ, जो मैं स्टेजेस में आपको पढ़ाऊँगी. तो बार बार मुंह में जब हम पेंसिल दे रहे हैं क्योंकि हमें किसी चीज़ की टेंशन है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है और बार बार पेन मुंह में जा रहा है, तो इसका मतलब हम बचपन की जो हमारी स्टेज है उस पे वापस जा रहे हैं, उस पे फिक्सेटेड हो गए हैं. तो दैट इज़ रिग्रेशन. रिग्रेशन का मतलब ही होता है वापस जाना.
अब कुछ लोगों को जब टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी होती है, दे स्टार्ट वेटिंग बेड. सो बेड वेट करना जो है ये बेसिकली छोटे बच्चे करते हैं. तो ऐसा अडल्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज उसका टेंशन इस तरह से रिलीज़ हो रहा है. तो अनकॉन्शियसली वो ये पीछे की स्टेज में अपनी लाइफ की जा रहा है, एंड दैट इज़ रिग्रेशन. So often unconsciously, consciously, we go back to our previous stages of development in order to reduce tension. That is called fixation. ऐसा इसको इस तरह से भी हम व्यू कर सकते हैं. We can view it in this manner also, that when one particular stage of childhood or adolescence or infancy is not dealt properly or has been difficult, then in the later stages of life, in the adulthood in future, we get fixated and problems appear. For example, अगर oral stage जो बिल्कुल छोटे बच्चों की होती है उस पर अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो क्या होगा जब वो इंसान बड़ा होगा तो उसको माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ओरल स्टेज पर उसका ध्यान नहीं रखा गया या फिक्सेटेड हो गया वो. तो दिस इज़ हाउ द डिफेंस mechanisms operate. Defense mechanisms are to reduce our anxiety or tension, and we do that consciously, unconsciously, primarily in many ways. So you have to remember, identification, displacement and sublimation are different from the defense mechanisms. In my next video, I'll be dealing with the stages of personality given by Sigmund Freud and how personality can be understood. Thank you.